Can you hear the voice? Oh man. Yes मैम आवाज आ रही है. William Crookes discovered cathode rays when he was studying electrical discharge in gases, whereas J.J. Thomson discovered that the cathode ray consists of negatively charged particles called electrons. Production. Cathode rays are produced in a discharge tube. Hence, the discharge tube is generally referred to as the cathode ray tube. The cathode ray tube is a partially evacuated glass tube with cathode and anode placed at the ends of the tube. A vacuum pump is used to partially evacuate the tube. The cathode is connected to the power source. Evacuate means to adjust the pressure in of the gas that is present inside the discharge tube. Okay. With the help of a clip. The tube is supported on a stand. It was found that electric discharge through gases took place only when the pressure inside the tube is lowered and the potential difference between the electrodes was high. To produce cathode rays, high potential difference of 10 kV to 20 kV is applied between the electrodes and the pressure is reduced to 0.0001 millimeter of mercury by means of a vacuum pump. A glow is seen on the walls of the glass tube. The bright fluorescence glow is due to the striking of the rays emitted by the cathode. These rays are cathode rays. Properties of cathode rays. Cathode rays travel in straight lines. When an opaque object is placed in the path of the cathode rays, a shadow is cast on the glass wall opposite to the cathode. This shows that cathode rays travel in straight lines. Cathode rays consist of negatively charged particles. The rays deflect towards the positive plate when the tube is exposed to an electric field. This is because the negatively charged particles in the cathode rays get attracted towards the positive plate. Cathode rays are deflected by the magnetic field. When the tube is exposed to a magnetic field, the cathode rays follow a curved path showing that they are deflected by the magnetic field. Cathode rays produce X-rays when they impinge on a metal with a high atomic weight. We will discuss that how X-rays are produced by these cathode rays. Cathode rays travel with a high speed almost equal to the speed of the light and hence possess kinetic energy. When cathode rays are made to fall on a paddle wheel, the wheel starts rotating, showing that the rays possess kinetic energy. Kinetic energy and momentum too. All those particles that possess the kinetic energy must have their particular momentum. Okay? I was on Vimeo. Is this really? So I think all the confusions will be cleared now. Yes मैम. अब थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था हमने और कहाँ से रेस पास हो रही थी और कहाँ से वो प्रोड्यूस हुई और किस तरफ वो मूव कर रही थी, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. So till now we discussed about the two particular properties that cathode rays travel in a straight line and cathode rays possess momentum. Now we will discuss that how the scientists came to know that the cathode rays are negatively charged. उनको कैसे पता चला था कि negatively charged हैं ये cathode rays, positively charged नहीं है. तो सबसे पहले इसकी हिंट तो उन्होंने यहीं से देख ली थी कि वो जो आपके पास cathode rays travel कर रही थी वो towards the anode कर रही थी. And the anodes are, what is the charge? Positively charged. Yes, exactly. तो आपको इससे भी आइडिया हो गया था कि आपके पास जो, क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रही हैं इसलिए वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकती, वो नेगेटिवली चार्ज होंगे.
इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर इसके अलावा अगर हम ये जानना चाहें कि कैसे पता चलेगा कि नेगेटिवली चार्ज हैं, हम खुद से प्लेट्स एडजस्ट करते हैं। एक तो एनोड है ना, एनोड को तो अगर हम सेपरेट एनोड को कंसीडर किए बगैर अगर हम खुद से दो प्लेट्स उसकी पाथवे में इस तरह से एडजस्ट करें कि एक नेगेटिव चार्ज हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर हम उसको कोई एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड दे के देखें और ये देखें कि वो किस तरफ टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अदर देन दैट एनोड, अगर हम उसको कोई और प्लेट्स उसकी पाथवे में इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कैसे उसमें ही किस तरह से अपना बिहेवियर शो करेगी। तो जब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने किसी एक्सटर्नल फील्ड से उसको नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव प्लेट्स इसकी पाथवे में एडजस्ट की, he observed that these rays deflect towards the positive terminal। ये वहां पे भी ये नोट किया गया कि ये आपके पास, अब जैसे उन्होंने कहा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसी तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हुई और वो डिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में हुई, टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, मींस दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टैंड? यस मैम। मारिया आप? यस मैम, समझ आ गया। यस मैम। ठीक है। अब जो अगली प्रॉपर्टीज है ना, वो आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट से, मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे लेकिन आपकी बुक में वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं हुए। एक एक्सरेज वाला है, वो आपका जो है वो एंड पे टॉपिक है कि किस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस किए इसने की। तो बस अभी आपसे ये याद रखना कि आपके पास कैथोड रेज के पास मोमेंटम होता है, दे पोजेस मोमेंटम, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर नेगेटिवली चार्ज, they are capable of producing the X-rays when they hit any heavy metal atom। जब इसको हिट करवाते हैं इन्हीं कैथोड रेज को किसी हैवी मेटल किसको बोला जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया या कोई भी इस तरह से हाई एटॉमिक नंबर वाला जो मेटल के साथ इसको हिट करवाते हैं, तो इसके अंदर से पर्टिकुलर एक्स रेज इमिट होती हैं। उन एक्स रेज की क्या प्रॉपर्टीज है वो हम आगे पूरे एक्स रेज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अब ये बात आप याद रखो कि जो एक्स रेज को प्रोड्यूस करने वाली रेज होती हैं वो एक्चुअली ये कैथोड रेज ही होती हैं। जब कैथोड रेज हाई स्पीड के साथ किसी भी मेटल टारगेट को शॉर्ट वेवलेंथ और जो है वो हिट करती हैं, हमारे पास हैवी मेटल टारगेट, तो उसके अंदर से शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास वो उन रेज को हम कहते हैं कि ये एक्स रेज है, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं इंटरनल इमेजिंग के लिए, रॉक्स की डेटिंग के लिए, और हम ये उन सब में एक्स रेज को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। Then your next property is that cathode rays can cause chemical change in any material। कि आपके पास जो कैथोड रेज होती हैं वो जब भी आपके पास किसी भी मेटल मटेरियल के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसमें केमिकल चेंज प्रोड्यूस करती हैं। फिजिकल चेंज की बात नहीं हो रही यहाँ, केमिकली उसके साथ वो रिएक्ट करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स आप उसको गेन करवा रहे हो, लूज करवा रहे हो, तो ये इनका एक केमिकल रिएक्शन होता है पर्टिकुलर मटेरियल के साथ। फिजिकल तो होता ही होता है, लेकिन मेन जो रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर ऐसा चेंज ले आता है कि उसके अंदर उसको केमिकली चेंज कर देता है। देन योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 इज दैट कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटालिक शीट्स। अगर इसके रास्ते में, इसके पाथवे में आप कोई हैवी मेटल या कोई भी मेटल शीट्स रख देते हो तो ये उसके अंदर से भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। दे आर पेनिट्रेबल, ठीक है, दे आर पेनिट्रेबल थ्रू द पर्टिकुलर मेटालिक सर्फेसेस और थ्रू पर्टिकुलर मेटालिक शीट्स, ये उसके अंदर से पास कर जाती हैं। ये हिट करके वापस नहीं जाती, ये उसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाती हैं। चाहे वो एल्यूमिनियम की शीट हो, चाहे वो गोल्ड, जो है वो आपके पास एक साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉइल को इसके पासे में रख के देखा था कि क्या ये गोल्ड फॉइल से हिट करके वापस जाती है या इसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाएगी। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि दे कैन पेनिट्रेट थ्रू दिस गोल्ड फॉइल और इट कैन आल्सो पेनिट्रेट थ्रू द एल्यूमिनियम फॉइल। So the second last property is that it are energetic. They are energetic rays. They produce heat when they fall on platinum foil and foil begins to glow। ये आपके पास इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, आपके पास प्रोड्यूस करती हैं जब भी ये किसी मेटल फॉइल के ऊपर फॉल करवाई जाती हैं। जब भी इसको हम प्लेटिनियम फॉइल के अंदर या किसी भी फॉइल पे हिट जो है वो हिट करवाएंगे तो ये उसके अंदर पर्टिकुलर जो चेंज प्रोड्यूस कर रही है उसके साथ साथ ये उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है।
तो आपके पास वो हीट भी प्रोड्यूस करने वाली यही रेज होती हैं और उन्हीं उसी हीट और साथ साथ ये ग्लो भी प्रोड्यूस करती हैं। ग्लो का तो हमने पढ़ा था कि जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हमने नोट डाउन किया था कि ये जब अगर इसके हम डिस्चार्ज ट्यूब के एंड पे एक जिंक सल्फाइड की या कोई भी फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाते हैं या कोई भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते हैं तो जब कैथोड रेज उनके ऊपर फॉल करती है तो वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं, जिसको कि हमने पढ़ा था कि ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर। फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स बहुत सारी किस्म की होती हैं। अगर आप कैथोड रेज जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वहां पे जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा दोगे तो वो ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है कि इट कैन आयोनाइज द गैस। दे कैन आयोनाइज गैस एंड दे कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू पॉजिटिव आयन। कि इन्हीं कैथोड रेज की मदद से जो गैस फिल की थी हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो आयनाइज हो जाती है। क्यों? आयनाइज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लूज या गेन करना। तो एक्चुअली ये देखो आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं तो पीछे गैस के अंदर क्या बच जाते हैं? जब गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करवा लेते हैं तो देन द लेफ्ट बिहाइंड पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स। Yes, ma'am. And they carry positive charge. Positive charge. So these these cathode rays ionizes the gas producing the positive particles. अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम एनोड रेस पढ़ेंगे या जब प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे कि वो जो एक्चुअली वो जो प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम एक दफा फिर मैं दोबारा से सारी प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे travel in a straight line that is confirmed by that shadow of an opaque object. Second property that they possess momentum, जिस तरह से भी वीडियो में भी वो आपके पास बताया गया था कि they have high kinetic energy. तो high kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Means they possess particular mass. इसके पास mass है इसीलिए इसकी kinetic energy high है। ठीक हो गया। तो आपके पास एक ये इस नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। दे आर नेगेटिवली चार्ज। हाउ वी केम टू नो दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज? बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द एनोड, क्योंकि वो आपके पास क्या है, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट आपने जो प्रॉपर्टी स्टडी की वो ये की कि इट प्रोड्यूसेस द एक्स रेज, इट कॉजेस द केमिकल चेंज, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटालिक शीट्स, they are high energetic rays they can produce the heat as well as a glow, and the last property is that they can ionize the gas. ठीक है, कौन रिपीट करेगा जो मैंने बताया? अब रात कुछ आप रिपीट करो फिर बाकी। yes Okay, ma'am. Now you have tell us that there is a vacuum. There is a tube in which a high voltage generator is being passed through these both sides, and the cathode and anode is attached to its both sides. When we apply a gas in a tube, yes same. fill the gas. When we fill a gas in a tube, when we fill a gas in a tube and apply cathode rays voltage and apply voltage, uh, voltage will be high or low? Voltage will be high or low? high. yes next आवाज सही नहीं आ रही। आवाज आप बोलो, मुझे आपकी आवाज सही आ रही है। तो मैं बस इतना ही आता था। सिर्फ बस? यस मैम। आर्या आप बताओ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप रिवाइज करो। आर्या बख्तावर, वेयर इज उमर? ओके मारिया आप रिवाइज करो प्रॉपर्टीज, या मैं आगे स्टार्ट करूं? Can I repeat properties? Yes, sure. Revise the property. What was your first property? That they cast a
They travel in a straight line. And how we came to know that all the cathode rays travel in a straight line? By placing an opaque object. yes, and these cathode rays cast a sharp shadow of those Opaque object. Fluorescent screen. यस फ्लोरोसेंट स्क्रीन बेटा तो वो तो हमने हर एक ट्यूब में लगाई है वो तो हम जब स्टार्ट में डिस्कवर कर रहे थे तभी हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी ताकि हमें पता चले कि यस द रेज आर प्रोड्यूसिंग देन वी स्टडी फ्लोरोसेंट स्क्रीन का तो काम साथ साथ चल रहा है वो तो एज इट इज साथ चल रहा है क्योंकि वो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी वो देख रही है साथ साथ नेक्स्ट Yes, ma'am. सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी Second property. Mm, they can produce X-rays when they strike on another particle with large atomic mass. atomic number oh हाँ yes atomic number next any other property what about their charge And they are high energetic rays. yes they are high energetic rays good another what about their charge Charge. yes Positive या negative में से? yes cathode rays carries negative charge or positive charge Ma'am, positive charge. They carry positive charge. how come beta as they are moving towards the positive pole वो positive pole की तरफ बताए ना? वो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर Yes, ma'am. इट मींस दे कैरी नेगेटिव चार्ज यस बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं तो इनके अपने ऊपर नेगेटिव होता है इसीलिए एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या किसी भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये केमिकल चेंज कॉज करते हैं और ये पेनिट्रेट भी कर जाते हैं इनके पाथवे में अगर आपके पास कोई भी मेटालिक शीट्स हो तो इसके अलावा आपके पास एक और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड E/m रेशियो कैसे मेजर की गई आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है आपको नजर आ रही है या मैं आपको शो करवाऊं मैम 3 डायग्राम्स हैं एक तो बाकी तो पेज नंबर 24 पर 3 है 25 पर 1 है कौन सी वाली आपने अपने जो लास्ट पे एंड पे वो जो थर्ड की जो कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेज यस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम दोनों फील्ड्स उस पे अप्लाई करते हैं उसकी जरा रीडिंग स्टार्ट करें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यस मैम J.J. Thomson cathode rays experiment show E/m and charge of an electron. Yes. Start reading. J.J. Thomson subjected a beam of cathode rays electron particles to see the effects of electric charge, electric and magnetic field as shown in figure 2.4. In the beginning, in the absence of any electric or magnetic field, the electrons from cathode rays struck the fluorescent screen at B. Then, under the effect of electric field, they strike at point A, at point C under the influence only. Now, electromagnetic fields are adjusted in such a way the two fields. He determined the E/m value of an electron, which is 1.7588 into 10 to the power 11 coulombs kilogram. This means that per kg. Okay. Now I'm going to explain it that how E/m. What is E/m ratio? E/m ratio जो आपके पास होती है वो होती है E means electron or charge and M means mass. आपके पास charge to mass ratio हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हम तमाम पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं उसमें अब जब वो डिस्कवर करनी थी तो उसके लिए J.J. थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया जैसे कि आप लोगों की बुक्स में लिखा हुआ है कि उसने वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा चेंज किया वो चेंज ये किया है कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना जो कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास बैटरी कनेक्ट की गई थी इसके अलावा उसने 2 एक्सटर्नल फील्ड्स और अप्लाई की वो कौन कौन सी थी एक इलेक्ट्रिक थी और एक मैग्नेटिक थी clear what did he do he again take the दोबारा बता दें he took the same discharge tube
उसने वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, लेकिन इस बार उसने क्या किया कि उसने 2 एक्सटर्नल फील्ड्स और अप्लाई की। ट्यूब सेम थी, आपके पास जो कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही थी वो एज इट इज प्रोड्यूस हो रही थी, वही बैटरी थी, वही वैक्यूम पंप लगा था, वही 2 इलेक्ट्रोड्स लगे थे, लेकिन उसने चेंज क्या किया, उसने 2 एक्सटर्नल फील्ड्स और अप्लाई की, एक इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसने कैसे अप्लाई की, हॉर्सशू मैग्नेट पुट करके उसकी फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद जब उसने फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे इन तीनों का पाथवे, अब उसने क्या किया कि उसने डिफरेंट फील्ड्स को ऑन एंड ऑफ करके देखा कि किस फील्ड का क्या असर होता है। ठीक है, आपके पास, आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि आपके पास पॉजिटिव जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उस पे पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो नीचे वाला आपके पास बॉटम पे है वो नेगेटिव प्लेट है। एक तरफ जिस तरफ पॉजिटिव पोर्शन है उस तरफ आपके पास Yes, ma'am. हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ आपके पास साउथ पोल है, ऐसे ही है। नाउ व्हाट डिड ही फर्स्ट डू, ही फर्स्ट, हमने इतने हॉर्सशू मैग्नेटिक क्यों लिया? बाकी टाइप से मैग्नेट क्यों आप नहीं कोई भी ली? मैग्नेट यूज कर सकते हो, आपको क्योंकि आपको जस्ट 2 पोल चाहिए, क्या नॉर्थ पोल चाहिए, एक साउथ पोल चाहिए, आपने बस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी, यू कैन अप्लाई एनी मैग्नेट, जस्ट वी नीड अ मैग्नेटिक फील्ड। Usually the horseshoe magnet is a stronger magnetic field. Yes, ma'am. So first he switch off the both fields and Yes, ma'am. then identify the path of cathode rays. उसने क्या किया, दोनों फील्ड्स को ऑफ कर दिया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑफ कर दिया, उसने मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑफ कर दिया, और फिर जहां पे वो फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस कर रही थी उस पॉइंट को मार्क कर दिया। तो वो कौन सा पॉइंट था, पॉइंट ए बी और सी। जब दोनों फील्ड्स ऑफ हैं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑन है, तो वो किस पॉइंट पे जाके कैथोड रे स्ट्राइक करेंगी, ए पे, बी पे या सी पे? टेल मी द आंसर। Point C. व्हाई सी? A point. बी पॉइंट, बिकॉज दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो आपके पास स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। ठीक है, तो उसको आपके पास ना तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर हो रहा है ना उस पे पॉजिटिव का कोई असर हो रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट, as you know that they travel in a straight line, so when the both fields are off they travel in a straight line and strike at the point B. Okay, now if both fields are on, then if D. both, again B, yes, because both field cancel the effect of each other. Yes. Now come towards that, if he switch on the electric field but no magnetic field, then what will be the point, Uh, A or C? C. वाई सी? क्या वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है? मैम सी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है ना? ये सी तो नेगेटिव है ना, तो ये तो खुद नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव की तरफ कैसे जा सकती है, इनको तो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। रिपेल जाएंगे तो फिर वो एक ही तरफ जाएंगे। यस, वो पहले ही ए की तरफ जाएंगे, वो रिपल्शन के थ्रू नहीं जा रही, वो पहले ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे टुवर्ड्स। एट्रैक्ट मैम, तो जो कैथोड रेस के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो पहले ही Yes, डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे उसको पता है उसको रिपल्शन फील करवा वो yes, ma'am. so it moves towards the point A and it shows the fluorescent point at point A. Now next, if we switch on the magnetic field but electric field will be off, then it moves towards the point towards the साउथ पोल। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक सी, यस, तो इसके तीनों पाथवेज आपको पता होना चाहिए। अब जो उसने कैसे मेजर किया ई बाय एम रेशो, उसने दोनों फील्ड्स अप्लाई की और उन दोनों को कंपेयर किया। ये अब आपके कोर्स में नहीं कि उसने कंपैरिजन कैसे किया था, किस तरह से कैलकुलेट। आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी बीच में कट हो गई थी आवाज। यस, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब ठीक है, अब आपको मेरी Yes, आवाज ma'am.
ठीक है, तो हमने ए बी सी और पॉइंट तो डिस्कस कर लिए। उसके बाद वो ये हमें कह रहा है कि जो रिजल्ट्स इसके निकले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन से ई बाय एम रेशो निकाली है। उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन से उसकी उनकी जो स्ट्रेंथ थी उनकी वैल्यूज को पुट करके कि कितनी फोर्स हम कितनी उसने फील्ड अप्लाई की, किस इंटेंसिटी की फील्ड अप्लाई की, उन कंपैरिजन के बाद जो उसने फाइनल वैल्यू निकाली ई बाय एम की, वो आपके पास क्या आई है 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। क्या ई बाय एम आई है उसकी 1.758 इंटू 10। आई थिंक मेरे नेटवर्क में कोई इशू है। यस मैम। अच्छा, तो उसकी फाइनल जो ई बाय एम रेशो आई वो क्या आई, क्या वैल्यू उसकी लिखी हुई है आपकी बुक्स में? 1.7588 into 10⁻11 कूलम 7 कूलम्स पर केजी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास वो है मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप मेथड। वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जो आप पढ़ा है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है ई बाय एम रेशो। अब ई बाय एम रेशो की बच्चे पूछते हैं कि ये आपके पास पूरी की पूरी डेरिवेशन क्यों नहीं है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अप्लाई किया गया, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अप्लाई किया, फिर उनका कंपैरिजन लिया गया और उसके बाद जाके जो फाइनल आपके पास वैल्यू आई वो आई चार्ज टू मास रेशो। आपको जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई बाय एम। व्हाट इज ई बाय एम, आपको ये पता होना चाहिए कि ई बाय एम होता क्या है और इलेक्ट्रॉन की ई बाय एम रेशो क्या है। लेटर ऑन हम इसको कंपेयर करेंगे प्रोटॉन की ई बाय एम रेशो से, न्यूट्रॉन की ई बाय एम रेशो से। तो जस्ट इट इज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पार्टिकल इन विच वी take the ratio of charge to mass, that is charge to mass ratio, that we represent as E by m. What is the value of E by m of electron? 1.758 into 10⁻11 coulombs per kg। per kg क्यों? क्योंकि coulombs तो चार्ज का है और E by m है, तो E by m, E की जो आपके पास यूनिट है वो तो कूलम है, तो m की क्या होती है, किलोग्राम होती है, तो दैट इट्स यूनिट इज कूलम पर केजी। ओके, ओके। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर इसलिए स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स थे। वो हम जब क्लास में आएंगे, जब खुद हमने उसमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तो इंशाल्लाह वो हम तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो है वो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है और उसमें दो तीन मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के। वो विल एक्सप्लेन इट इन द क्लास। मैम पिछले इस साल तो पूरा स्कूल बंद है। हाउ यू नो दैट? Okay, ma'am. यस मैम। We can't say anything about this. यस। We can't say anything about these decisions. So just you have to study. Either you are at your home or in your school or college. ओके। Okay. So now what's your homework? यस। What's your homework? I'll write the assignment and you have to solve that assignment. Your answer will be from these two topics, from the discovery of cathode rays and from its properties. जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने एग्जैक्ट उसका आंसर लिखना है और उसका आंसर आपने इस तरीके से लिखना है जिसमें से आप अपने पेपर का सेक्शन बी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, that about 3 marks each। 3 नंबर के हिसाब से आपने उसके तमाम आंसर्स लिखने होंगे। अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू सबमिट इट टिल फ्राइडे। ओके। आपने संडे तक Okay, नहीं ma'am. छोड़ना है, आपने उसको स्टार्ट करना है। ओके, आई थिंक Okay, ma'am. मिनट्स आर लेफ्ट, यू गाइस कैन डू। मैम असाइनमेंट आप ग्रुप में भेजेंगी? असाइनमेंट कल तक ग्रुप में आ जाएगी। Okay, ma'am. ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज। You can leave.